हेलो एवरीवन, मैं नेहा हूँ, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज हम 10 सितंबर 2025 के द हिंदू के 2 महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। दिस इज अ वेरी शॉर्ट ब्रेकडाउन। A very detailed breakdown of daily editorials are available on our editorial analysis website. In the website, the editorial is broken down phrase by phrase based on sentence structure, and for each phrase, its vocabularies, Hindi translation, simplified English is given. In addition to this, the context and background of sentences, 5-point summary, and the tone of the editorial are also explained. The website has exam standard reading comprehension questions as well for each editorial. The website link is in description. Score Clever also provides daily premium editorial vocabulary PDFs that has explanations for important vocabularies. The PDFs are available for free in the Score Clever Telegram channel. Link for joining the channel is in description. मेरी एक छोटी सी एडवाइस है. Feel free to pause and analyze every sentences in between the video if you don't understand the explanation. Prompt yourself to read the sentence twice bit louder after understanding the meaning if possible. If beginners do like this, they will drastically improve their English knowledge in 6 months. चलिए, अब शुरू करते हैं. हमारा पहला एडिटोरियल है Measure for Measure on India's Courts and Criticism. जैसे को तैसा, भारत की अदालतों और आलोचना पर. Courts should not react defensively to every line of criticism. अदालतों को आलोचना की हर पंक्ति पर रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए. While it is the court's prerogative to punish contempt, जबकि ये अदालतों का विशेषाधिकार है कि वे अवमानना को दंडित करें. यहाँ prerogative का मतलब है विशेष अधिकार या special right, और contempt का मतलब है अदालत का अपमान. How well they have separated contemptuous attacks. उन्होंने अपमानजनक हमलों को कितनी अच्छी तरह अलग किया है from constitutionally protected criticism, संवैधानिक रूप से संरक्षित आलोचना से, especially by journalists, lawyers, activists and scholars. विशेष रूप से पत्रकारों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और विद्वानों द्वारा की गई. Has varied widely. ये बहुत अलग-अलग रहा है. This is because the judiciary has not been able to draw consistent lines. ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका एक स्पष्ट और निरंतर सीमा रेखा खींचने में सक्षम नहीं रही है. Between fair and exaggerated criticism, उचित और बढ़ा चढ़ाकर की गई आलोचना के बीच, politically motivated and defamatory comments, राजनीति से प्रेरित और मानहानि करने वाली टिप्पणियों, and speech that obstructs justice, और उस भाषण के बीच जो न्याय में बाधा डालता है. The judiciary faces misinformation, political pressure, abusive online discourse, and declining public trust. न्यायपालिका को गलत सूचना, राजनीतिक दबाव, अपमानजनक ऑनलाइन बातचीत और कम होते सार्वजनिक विश्वास का सामना करना पड़ता है. And the ways in which judges can respond to these attacks are limited. और इन हमलों का जवाब देने के लिए जजों के पास जो तरीके हैं वे सीमित हैं. Rhetorical excess in oral observations. मौखिक टिप्पणियों में इस्तेमाल की जाने वाली आलंकारिक अतिशयोक्ति या जरूरत से ज्यादा शब्दों को. Rhetorical excess मतलब जब हम प्रभाव डालने के लिए बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. Must also not be confused with legal doctrine. कानूनी सिद्धांत के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए. However, recent comments by the bench, हालांकि हाल ही में बेंच या जजों के समूह द्वारा की गई टिप्पणियों ने have created the appearance of a judiciary, एक ऐसी न्यायपालिका की छवि बनाई है, increasingly intolerant of external scrutiny, जो बाहरी जांच या आलोचना के प्रति तेजी से असहिष्णु होती जा रही है. Last week when hearing a lawyer's petition, पिछले सप्ताह जब एक वकील की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, over not having been elevated to a senior rank, जिसे वरिष्ठ रैंक पर प्रमोट नहीं किया गया था, CJI सूर्यकांत described certain actors in the legal ecosystem as parasites. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ लोगों को परजीवी या parasites बताया. And certain young lawyers engaging in RTI-based activism as cockroaches, और RTI आधारित सक्रियता में शामिल कुछ युवा वकीलों को कॉकरोच कहा. While he later said, हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि
The remarks were directed at persons entering professions with bogus degrees. ये टिप्पणियां उन लोगों के लिए थीं जो फर्जी डिग्री के साथ पेशे में प्रवेश कर रहे हैं, rather than critics of the judiciary, न कि न्यायपालिका के आलोचकों के लिए. Such language is unbecoming of the CJI. ऐसी भाषा मुख्य न्यायाधीश के लिए अशोभनीय या अनुचित है. Unbecoming मतलब जो किसी के पद या दर्जे के अनुकूल न हो. The tenor follows the NCERT textbook controversy. ये रवैया NCERT पाठ्यपुस्तक विवाद के बाद देखने को मिला है. With the Supreme Court focusing its manifest ire, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट क्रोध केंद्रित किया. Manifest ire का मतलब है साफ तौर पर दिखने वाला गुस्सा. On 3 academics involved in drafting the chapter. अध्याय का मसौदा तैयार करने में शामिल 3 शिक्षाविदों पर. Effectively excluding them from work on public school curriculum. उन्हें प्रभावी रूप से पब्लिक स्कूल पाठ्यक्रम के काम से बाहर कर दिया. Without prior hearing, बिना किसी पूर्व सुनवाई के. The action evoked concerns. इस कार्रवाई ने चिंताएं पैदा की थीं. About the court being aggrieved party and arbiter. कि अदालत खुद ही पीड़ित पक्ष और मध्यस्थ दोनों बन गई है. आबिटा मतलब फैसला सुनाने वाला. इन दी अली खान महमूदाबाद मैटर, अली खान महमूदाबाद मामले में द कोर्ट ग्रांटेड हिम रिलीफ फ्रॉम कोअर्सिव एक्शन. अदालत ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी. कोअर्सिव एक्शन का मतलब है जबरदस्ती या दबाव वाली कानूनी कार्रवाई. बट ऑल्सो इम्पोज्ड अ गैग ऑर्डर. लेकिन साथ ही एक गैग ऑर्डर या बोलने पर पाबंदी भी लगा दी. Then in a display of willingness to discipline the norms of public conduct, फिर सार्वजनिक आचरण के मानदंडों को अनुशासित करने की इच्छा दिखाते हुए, rather than determine legality, बजाय इसके कि कानून की वैधता तय की जाए, it urged the state to decline to prosecute him as a concession. इसने राज्य से आग्रह किया कि वो एक रियायत के रूप में उस पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दे. When a CGI's comments of this nature appear outside formal contempt proceedings, जब CGI की इस तरह की टिप्पणियां औपचारिक अवमानना कार्यवाही के बाहर आती हैं, they render a chilling effect. वे एक डराने वाला प्रभाव पैदा करती हैं. Chilling effect मतलब एक ऐसा डर जिससे लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से घबराएं. As they amount to institutional condemnation, क्योंकि वे संस्थागत निंदा के बराबर हैं. Without the safeguards of due process, उचित कानूनी प्रक्रिया की सुरक्षा के बिना. The comments on using the RTI Act as a basis for activism, सक्रियता के आधार पर RTI अधिनियम का उपयोग करने पर की गई टिप्पणियों का have a similar effect, भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है. Beyond the act being a legitimate instrument, इसके बावजूद कि ये अधिनियम एक वैध उपकरण है. Recently, when a journalist with a law degree, हाल ही में जब एक कानून की डिग्री वाले पत्रकार ने sought data on complaints against specific judges, विशिष्ट न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर डेटा मांगा, the Supreme Court Registry declined the existence of such information. तो Supreme Court Registry ने ऐसी जानकारी होने से इनकार कर दिया. When the journalist produced a law ministry disclosure to the contrary, जब पत्रकार ने इसके विपरीत कानून मंत्रालय का एक खुलासा पेश किया, the registry's legal representative dubbed the inquiry fishing and roving. तो रजिस्ट्री के कानूनी प्रतिनिधि ने इस पूछताछ को फिशिंग एंड रोविंग या बेवजह की छानबीन करार दिया. फिशिंग एंड रोविंग मतलब बिना किसी ठोस सबूत के हर जगह छानबीन करना. A moving goalpost that was again under concerned with legality. ये एक बदलता हुआ पैमाना था जो फिर से कानूनी वैधता से कम चिंतित था. While raising questions of the court arguing its own case, जबकि इसने अदालत के खुद अपने मामले में बहस करने पर सवाल उठाए. Former CJI D.Y. चंद्रचूड़ said, पूर्व मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा था कि judges are public actors exercising state power, कि न्यायाधीश सार्वजनिक अभिनेता हैं जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं. And courts should not react defensively to every line of criticism. और अदालतों को हर तरह की आलोचना पर रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए. That attitude improved how the bar, the press and the academy experienced courts. उस रवैये ने इस बात में सुधार किया था कि वकीलों, प्रेस और एकेडमी ने अदालतों को कैसे अनुभव किया. The recent comments have set the clock back. हाल ही की टिप्पणियों ने समय को पीछे धकेल दिया है. दोस्तों, इस एडिटोरियल का टोन क्रिटिकल और एनालिटिकल है. ऑथर ने न्यायपालिका के हाल ही बयानों की कड़ी आलोचना की है और ये एनालाइज किया है कि कैसे इन बयानों से फ्री स्पीच और पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान पहुंचता है.
दूसरे एडिटोरियल पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक शानदार अपडेट है। अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को याद रखने में स्ट्रगल करते हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर से हमारा स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। The app uses a unique new learning technique so that what aspirants learn once, they never forget. The app will predict when aspirants will forget a learned information and makes them to revise accordingly over time. So aspirants will never forget what they have learned. ये spaced repetition technique वाकई में magic की तरह काम करती है. Also, please comment your feedback about this new podcast initiative. It takes a lot of effort to create this podcast. So urge you all to support us with your like, share to at least 5 of your friends and also don't forget to subscribe. आपके सपोर्ट से ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, द बेल रूल ऑन लिबर्टी एंड द अंद्राबी रूलिंग, जमानत का नियम, स्वतंत्रता और अंद्राबी फैसले पर। The Andrabi ruling reaffirms liberty over the stringent UAPA bar. अंद्राबी का फैसला सख्त UAPA प्रतिबंध के ऊपर स्वतंत्रता की फिर से पुष्टि करता है। The idea of justice should never allow. न्याय का विचार कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देना चाहिए for the indefinite imprisonment of someone without trial, कि किसी को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जाए। However, the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), हालांकि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे UAPA कहा जाता है, does so through its stringent section 43D5, ऐसा करता है अपनी कठोर धारा 43D5 के माध्यम से, which makes bail near impossible, जो जमानत को लगभग असंभव बना देता है। Once a court is satisfied, एक बार जब अदालत संतुष्ट हो जाती है, on the prosecution's material, अभियोजन पक्ष की सामग्री के आधार पर, prosecution मतलब वो पक्ष जो अपराध का आरोप लगाता है, that a prima facie case exists against the accused, कि आरोपी के खिलाफ प्राइमा फेसी या शुरुआती तौर पर एक मामला बनता है। बट ऑन May 18, लेकिन 18 मई को इन सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू मामले में द टॉप कोर्ट डिलीवर्ड अ वेलकम रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। शीर्ष अदालत ने इस सिद्धांत को फिर से एक स्वागत योग्य रूप में प्रस्तुत किया, दैट बेल शुड बी द रूल, कि जमानत एक नियम होना चाहिए, इवन इन केसेस रिलेटेड टू द UAPA, यहाँ तक कि UAPA से जुड़े मामलों में भी। द बेंच ग्रांटेड बेल टू अंद्राबी, बेंच ने अंद्राबी को जमानत दे दी, हु हैड स्पेंट ओवर 5 years and 9 months इन प्री ट्रायल कस्टडी, जिसने सुनवाई से पहले 5 साल और 9 महीने हिरासत में बिताए थे। प्री ट्रायल कस्टडी मतलब मुकदमे की सुनवाई शुरू होने या खत्म होने से पहले की जेल। The bench also clarified the legal position. बेंच ने उस कानूनी स्थिति को भी स्पष्ट किया wherein under trial has spent years in custody, जहां under trial या विचाराधीन कैदी ने हिरासत में वर्षों बिताए हों, without any realistic prospect of the trial concluding, बिना इस यथार्थवादी उम्मीद के कि मुकदमा कब खत्म होगा। By reiterating that the right to personal liberty and a speedy trial, ये दोहराते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई का अधिकार कैन नॉट बी सबसर्वियंट टू द प्रोविजन इन सेक्शन 43D5, धारा 43D5 के प्रावधान के सबसर्वियंट या अधीन नहीं हो सकता। द जजमेंट डिसअप्रूव्ड द रीजनिंग इन 2 जज बेंच रूलिंग्स, इस फैसले ने 2 जजों वाली बेंच के 2 फैसलों के तर्क को अस्वीकार कर दिया। गुरविंदर सिंह 2024 और गुलफिशा फातिमा मामले, डिसाइडेड अर्लियर दिस ईयर, जो इस साल की शुरुआत में तय किए गए थे। बोथ हैड सॉट टू डाइल्यूट द प्रिंसिपल, दोनों ने उस सिद्धांत को डाइल्यूट करने या कमजोर करने की कोशिश की थी। लेड डाउन बाय अ 3 जज बेंच इन KA नजीब 2021, जिसे KA नजीब 2021 मामले में 3 जजों की बेंच ने निर्धारित किया था, विच हेल्ड दैट द रिगर्स ऑफ सेक्शन 43D5 वुड मेल्ट डाउन, जिसमें कहा गया था कि धारा 43D5 की रिगर्स यानी कठोरता पिघल जाएगी या कम हो जाएगी, where there was no likelihood of the trial concluding within a reasonable time, जहां उचित समय के भीतर मुकदमा समाप्त होने की कोई संभावना नहीं थी, and the incarceration already undergone was substantial, और जो incarceration या जेल की सजा पहले ही काटी जा चुकी है वो काफी लंबी थी। The bench also held that the 2 judge benches, बेंच ने ये भी कहा कि 2 जजों वाली बेंच could not have departed from a binding 3 judge ruling in the first place। पहली बात तो यह है कि वे 3 जजों के बाध्यकारी फैसले से हट नहीं सकती थीं।
In Gulfisha Fatima, the Delhi riots larger conspiracy bail decision, गुल्फिशा फातिमा मामले में जो दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के जमानत फैसले से जुड़ा है, the court denied bail to उमर खालिद and शर्जील इमाम। अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया and even foreclosed their right to renew the plea for a full year, और यहाँ तक कि पूरे 1 साल तक उनकी याचिका को फिर से नवीनीकृत करने के अधिकार को भी foreclose कर दिया या रोक दिया, despite both having spent over 5 years in prison। इसके बावजूद कि दोनों ने जेल में 5 साल से अधिक समय बिताया था। Now in Andrabi, the court has disapproved the Gulfisha Fatima bench's reading। अब अंद्राबी मामले में अदालत ने गुल्फिशा फातिमा बेंच की उस व्याख्या को अस्वीकार कर दिया है कि नजीब मामला केवल अपने तथ्यों तक सीमित था और ये धारा 43D5 पर कोई संवैधानिक सीमा नहीं थी। Consequently, खालिद एंड इमाम should have been granted bail। नतीजतन खालिद और इमाम को जमानत दी जानी चाहिए थी on the basis of the नजीब ruling, नजीब फैसले के आधार पर, and not denied it on a narrower reading of it, और इसकी संकीर्ण या छोटी सोच वाली व्याख्या के आधार पर उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। This is a welcome intervention। ये एक स्वागत योग्य हस्तक्षेप है, provided it is binding in all such cases, बशर्ते ये ऐसे सभी मामलों में बाध्यकारी हो, even if it is only about the favorable consideration of bail pleas where the accused have been in custody for long periods without trial। भले ही ये केवल जमानत याचिकाओं पर अनुकूल विचार करने के बारे में हो जहां आरोपी बिना मुकदमे के लंबी अवधि से हिरासत में है, and not about a right to bail under the UAPA, और UAPA के तहत जमानत के अधिकार के बारे में नहीं। Tellingly, a day after अंद्राबी, स्पष्ट रूप से अंद्राबी मामले के एक दिन बाद, एडिशनल सोलिसिटर जनरल SV राजू told another bench, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल SV राजू ने एक अन्य बेंच को बताया that under the UAPA's statutory bail bar कि UAPA की वैधानिक जमानत रोक के तहत the presumption of innocence takes a backseat, निर्दोष होने की धारणा पीछे छूट जाती है, which is precisely the position Andrabi has now set itself against, in line with constitutional principles, जो ठीक वही स्थिति है जिसके खिलाफ अब अंद्राबी मामले ने खुद को खड़ा किया है, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप। दोस्तों, इस दूसरे एडिटोरियल का टोन ऑप्टिमिस्टिक और लॉडिटोरी है। ऑथर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ कर रहा है और ये उम्मीद जता रहा है कि कठोर कानूनों के बावजूद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक और बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। क्या आप वोकैबुलरी सीखने को एक गेम की तरह एंजॉय करना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए हमारा डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज ऑन टेलीग्राम। ये क्विज डेली एट 7 PM लाइव होता है। इट कवर्स द डेज एडिटोरियल वोकैबुलरी। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी मान सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स, स्कोर्स और शानदार रिवॉर्ड्स होते हैं। सो आई इनवाइट ऑल द लिसनर्स टू जॉइन द चैनल वोकैब लीग। ज्वाइनिंग लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कल फिर मिलते हैं नए एडिटोरियल्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।